Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? Hope all are fit and fine at your home, stay safe. It is not right time to roam outside. Yes, you know that. So be careful and take care of your health and your family too. So we had discussed about the Great Northern Plains. Our introduction part we had done. So today we will see the three river basins. Okay, the Sutlej basin and the Ganga basin and Brahmaputra basin. So before that we will do a activity and a thought of the day. Today's thought of the day is water a tree, get rain in free. Water a tree, get rain in free. What is this? You should water a tree or a plant, then you can get rain in free. Free में क्या मिलता है? Rain मिलता है, which is very important for us. Yes? We have to watering a tree or a plant, then we will get rain in free. हमको रेन मिलता है फ्री में. हम वाटर करते हैं ट्री को तो हमको क्या मिलता है वापस? रेन मिलता है. बहुत सारा हेल्प मिलता है ट्री से, लेकिन ये भी मिलता है रेन. तो आपको क्या करना है? प्लांट्स को वाटरिंग करना है ना? ओके, दिस इज थॉट ऑफ द डे है. See here, solve it. Yes, you have to solve this problem. This is an activity for you. What you have to do? You have to write any number, but don't repeat the number. In this line also, you should not repeat the number. Any number, 2, 5, 6, 7, 8. Don't repeat it. This number 6 number should not come here, 7 number should not come here. Like that, you should not repeat the number, but you have to get 15 in addition. If you add this 3 number, you have to get 15. This line also 15, this line also 15. Like that, you have to calculate it. Then you have to write numbers in the boxes. Okay, you have to solve it. Try to solve this problem. If you will not get the answer, I will explain it to you, but try to solve this problem. It is the activity. In next class, I will explain how to do this. Okay, will you do? Draw this like this line, and you have to fill in this. Don't repeat any number, and you have to get 15 in every single, like this. Every single line you have to get 15 out of this, like this. Okay, will you do this? I hope you all will try to do this problem. Yes, it is very simple and easy one. You have to use trick for this. Okay, try to solve this. Okay, yesterday we discussed about the great river basins. Basins क्या होता है? The area through which they flow is called a basin. River जो होता है वो कैसे flow होता है, किस एरिया में flow होता है, उसको हम basin कहते हैं. Plains are divided into 3 basins. This plain area जो है वो river basin से वो 3 river basin, glacier rivers होता है, उससे divided into 3 basins. 3 plain area जो है वो 3 division से divide किया हुआ है. तो क्या क्या है वो? एक है, you can see in this picture, सतलेज बेसिन और गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन. जो
एरिया जो है गंगा रिवर फ्लो होता है वो गंगा बेसिन होता है। सतलेज बेसिन जो है वो एरिया जो सतलेज रिवर फ्लो होता है। और ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो होता है। आप लोग देख सकते हो नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया ऊपर इसके ऊपर ही आता है। ब्रह्मपुत्रा गंगा एंड सतलेज बेसिन में ही वो तीनों बेसिन में नॉर्दर्न प्लेन एरिया आता है ना। ग्रीन शेडेड पार्ट यू कैन सी राइट। सो सतलेज बेसिन इन विच direction or which side it is in the west side, and Brahmaputra basin in the east, Ganga is in the middle. Yes, okay. So you can understand with this picture where the Ganga basin is situated, where is Sutlej basin is situated, and where is Brahmaputra basin is situated. Yes, आपको पता चलेगा ये पिक्चर से कि कहाँ सतलेज बेसिन फ्लो होता है, सतलेज बेसिन है, कहाँ सतलेज रिवर फ्लो होता है, कहाँ गंगा बेसिन है, कहाँ ब्रह्मपुत्रा बेसिन है. Yes, you understood, right? Yes, in this picture you can see the Sutlej basin. Yes, Sutlej joins Indus in Pakistan. ओके, तो ये पार्ट है पाकिस्तान का, जो वाइट कलर है, जो वाइट कलर पार्ट है, यू कैन सी इट इज़ पाकिस्तान. यस, it flows in Punjab. It flows in Punjab. Sutlej. Yes, you can see, right? So the river Sutlej and its tributary river is Beas, flow across Punjab and then join river Indus in Pakistan. They are a boon to the people of Punjab. ये पंजाब का जो boon होता है, वो जो डिपार्ट नहीं हो सकता है, इतना जो इम्पोर्टेंट रिवर है पंजाब में. तो दे आर a boon to the people of Punjab as this region does not receive much rain. क्यों ये boon जैसा है? क्योंकि इस रीजन में रेन कम आता है, पंजाब रीजन में रेन कम आता है, तो ये रिवर जो है ये पेरेनियल रिवर होता है, तो पंजाब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है. ओके, with the construction of the Bhakra Nangal Dam on the river Sutlej, farmers now obtain water and electricity. इसमें क्या होता है? भाखरा नंगल डैम है, कंस्ट्रक्टेड किया हुआ है ए सतलेज रिवर के थ्रू. ए भाखरा नंगल डैम को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है जो सतलेज रिवर में. ये फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल है. तो वाटर यूज़ होता है जो फार्मिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है. इसमें जो वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर के ज़्यादा ग्रो होता है ये रीजन में, पंजाब रीजन में. जो वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम. जो इरिगेशन सिस्टम है, जो पानी यूज़ करते हैं ये सतलेज रिवर से. इसीलिए सतलेज रिवर है वो पंजाब के लिए बून है, पंजाब के लिए जो वेरी इम्पोर्टेंट रिवर है. ओके, यू अंडरस्टूड, राइट? यस, हियर यू कैन सी सतलेज रिवर जो है वो पंजाब एंड हरियाणा में फ्लो होता है. हरियाणा में जो पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा सा फ्लो है. इस सो द बेसिन ऑफ सतलेज इज ऑक्यूपाई इन पंजाब एंड हरियाणा. थोड़ा सा हरियाणा में भी है. ओके, अब
19 पेज में हमारा द सतलेज बेसिन है वो रीड कर सकते हो कि द रिवर सतलेज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द रिवर बीस सतलेज एंड बीस फ्लो अक्रॉस पंजाब एंड देन जॉइन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जॉइन होता है। दे आर अ boon to the people of Punjab as this region does not receive much rain with the construction of the Bhakra Nangal Dam. Yes, भाखरा नांगल डैम जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है सतलेज बेसिन सतलेज रिवर के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सतलेज रिवर में भाखरा नांगल डैम, ये रिवर जो सतलेज के लिए, जो इस रिवर से फार्मर्स के लिए वाटर यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। उसमें वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम जो है, इरिगेशन सिस्टम मतलब वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, जो क्रॉप्स को, वो सब इरिगेशन सिस्टम होता है, उसमें यूज़ होता है। यस, यू अंडरस्टूड राइट। आपको पता चला कि सतलेज बेसिन कैसे फ्लो होता है। सतलेज रिवर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो एरिया है उसमें जाता है। और भाखरा नांगल डैम भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है द रिवर सतलेज में, वो इरिगेशन सिस्टम में यूज़ होता है। और द नेक्स्ट वन इज़ द गंगा बेसिन। द गंगा बेसिन इज़ originating from the Gangotri Glacier in the Himalayas. So कहाँ से शुरू होता है गंगा बेसिन? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब आपको पता है, गंगोत्री जो है वो उगम स्थान है गंगा नदी का, गंगा रिवर का उगम स्थान है गंगोत्री। हिमालयाज में जो गंगोत्री है वो स्टार्ट होता है, गंगा नदी जो है वो स्टार्ट होता है गंगोत्री में। एक गंगोत्री रिवर है, गंगा रिवर है, इट फ्लोज अक्रॉस द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो यू कैन सी दिस रिवर पूरा नॉर्दर्न प्लेन एरिया में फ्लो होता है, बहता है। इट इज़ जॉइंड बाय इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर के न्यूमरस मतलब नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। ट्रिब्यूटरी तो आपको पता है स्मॉल रिवर है दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। गंगा को जॉइन होता है जो स्मॉल रिवर होता है, वो गंगा का ट्रिब्यूटरीज है। व्हाट आर दे? दे आर द यमुना, द कोसी, द गंडक, द घाघरा, द गोमती, द चंबल, द सन एंड द दामोदर इन इट्स वेरियस कोर्सेस। वो पूरा जो यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा, द गोमती, चंबल, ये सब ट्रिब्यूटरी रिवर है जो गंगा में बहते हैं, गंगा को जॉइन होता है, गंगा नदी को जॉइन होता है। मैनी इंपॉर्टेंट टाउन्स आर सिचुएटेड अलोंग द रिवर। सो आपको पता है कि रिवर जो कहाँ होता है, उस साइड में फर्टाइल लैंड होता है, प्लेन एरिया होता है, उधर जो है अच्छे से क्रॉप्स आता है, इसीलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होता है। फिर उस साइड में जो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है, उसमें टाउन्स आर सिचुएटेड। सो cities are situated along the river as there is plenty of water available. उधर जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर और गंगा रिवर के किनारे में हमको क्या मिलता है? वाटर सप्लाई अच्छा होता है, इसीलिए उधर टाउन्स ज़्यादा होता है। द सॉइल इज़ रिच। सॉइल में मिनरल्स जो होता है, अच्छे से फर्टाइल लैंड होता है। तो मैनी क्रॉप्स लाइक जूट, राइस, वीट एंड शुगर केन ग्रो वेल हियर। इसमें जो शुगर केन, वीट, राइस, जूट, ये सब क्रॉप होता है, ग्रो होता है अच्छे से। और द गंगा प्लेन इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। वो गंगा प्लेन एरिया में
जो कहते हैं गंगा रीजन में, गंगा प्लेन रीजन में डेंसली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, से सॉइल अच्छा होता है इधर और मिनरल्स अच्छे हैं, जो वाटर सप्लाई अच्छा है, फर्टाइल लैंड है, इसीलिए इस रीजन में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ताकि उधर अच्छे से एग्रीकल्चर करते हैं, जो पीपल जो है वो लैंड को यूज़ करते हैं अच्छी तरह से, इसीलिए उधर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। ओके, तो गंगा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में एंटर होता है, जो बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल द रिवर गंगा फॉर्म्स द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा। डेल्टा जो है वो क्या होता है, वो हमारा रिवर जो फ्लो होता है लास्ट में कहाँ, सी जो ओशन होता है उसमें जाता है, लास्ट में जो ओशन में ही जाता है ऑल द रिवर्स। सो वो प्लेस को हम डेल्टा कहते हैं, वो प्लेस को हम डेल्टा कहते हैं जो वो एंटर होता है टू द सी और ओशन इन द वर्ल्ड। सो दिस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा, और डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हो गंगा बेसिन कहाँ से कहाँ तक है। यस, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब प्लेस में जो गंगा बेसिन आता है। ओके, वेस्ट बंगाल में जो यू कैन सी सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। यस, you can see this picture, right? The Ganga basin. Okay, so this is Gangotri and how it flows, the glacier, Gangotri glacier, how it flows. It is the picture of Gangotri. Yes, okay. So after flowing through Uttar Pradesh and Bihar, the Ganga enters West Bengal here. You can see it will flowing through Uttar Pradesh and Bihar. Then it will enter into West Bengal. Yes, you can see this picture, right? The how the Ganga flows. Okay, you understood by this picture, right? ये सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या है, जो कहाँ जो रिवर है वो समुद्र में मिक्स होता है, समुद्र में एंटर होता है, उसके पहले जो प्लेस है वो सब डेल्टा है, वो सब डेल्टा होता है। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर, राइट? Ganga and Brahmaputra is the largest in the world. It is called as the Sundarban Delta. Sundarban Delta. ये दोनों रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, इसलिए दो रिवर से हम सुंदरबन डेल्टा जो होता है उसको most fertile delta in the world. It is the most important delta and fertile in the world. वर्ल्ड में ही ये फर्टाइल बेसिन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो सुंदरबन्स, सुंदरबन डेल्टा. It is in green shaded. Yes, where the rivers enter into the sea, that area is called delta. Understood? Okay, we will see the Brahmaputra basin in our next class. I hope you understood this chapter. If you can't understand, please call and ask any
questions or any doubts you have in between 5 to 7 p.m. you can call me. Okay. Bye bye. Take care. Stay home. Stay safe.